quickly guys, write IFOA if you are from IFOA and II if you are from II, because we are going to discuss loan schedule today, that is your chapter 8 in CM1, and it may not involve that much complicated notations, but there is a structure of writing the notation which can be different in IFOA and II, because in II you are not allowed to use Excel in your paper A, but IFOA students are allowed to use Excel in their paper A, right? Okay, Bhavya, Mithun are from II, and I can see Shri, Rashika and Shivam are from IFOA. Clear? More students in the class, quickly. I want this class to be interactive. For the initial parts where there is nothing new in my writing structure, I would be asking you guys to type, okay? So please open up your laptops, and once you have opened up your laptops, give me a yes in the chat room. Once I get the green signal, I'll start discussing how to explain your answers, okay? This class is basically not more about notations, because already we have covered the notations in our previous classes, but this is more focused on how to present your answer in the tabular format, because this is the first chapter where you will be required to calculate a table, create a table, right? Okay, Praveen and Mehak have opened up their laptops. Rest of the students, should we start? Should we start, guys? Okay guys, let's start. So look, basically the first thing is, in loan schedule what you are required is calculate the loan outstanding at the end of year or the start of the year, or you are asked to calculate interest payment, capital payments, right? Or you can be asked to calculate the installments. So in these types of question, you basically have to create equation of value. Simple. So equation of value you can either create using annuities and increasing annuities notation that we have already discussed in the previous classes. So there is no big deal in that. Everyone can write equation of value or the notations for AN, ADUN, IAN, everyone can write that. Already done in the previous classes, right? We have done 2 classes over notations. Yes guys? Yes, everyone can write. For those who cannot write, please refer to my previous videos, because in this class I won't be telling how to write the notation, okay? The next type of question can be to create a loan schedule, right? Loan schedule is basically a tabular format. So what if I have been asked to calculate, I have been asked to create a loan schedule. So what will I do is, I will use either Excel if it is allowed in your paper, that is basically for IFOA student they can use Excel, and either I can create table directly in my Word or whatever the software is allowed in your exam, okay? I'll also tell an alternative that if you are not able to make a table in the Word directly, what else you can do if you are asked to create a loan schedule, okay? That's why I have picked a question that involves loan schedule only. We'll be doing question 8.7. So everyone give me a quick yes if you can do first part, because we will be, just a second, we won't be doing 7, we will be doing question 8. So everyone give me a yes if you can do your first part easily. There is no doubt in the first part notation. I am not talking about the concepts, I am talking about the notation. So basically the notation will be something in A format and something in IA format. So this is nothing new, I have already taught you guys in the previous class. So can we start with the second question? Yes. First part is clear to Mithun and everyone else, I am expecting, because we have already done 2 classes over these notations. Yes, very good guys. So let's do with second part, where I have to calculate the interest element, capital element, and I have also to show the loan schedule basically, right? So let's do. First of all, let's do it for IFOA, okay? What IFOA students can do is, they can simply use the loan schedule, use the Excel, put in the formulas in Excel, get the values, okay? Now format this, that is borders, de do sabko, and copy
paste it in your Word. But they also have to show the formula for each and every column they have produced. Okay, they can either give the formula in general terms or they can give the formulas in example terms. For example, जैसे कि मैंने करा लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फॉर एग्जांपल 5th ईयर मुझे निकालना है, तो आई विल यूज द फॉर्मूला व्हिच इज आइदर आई कैन गो फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच और पर्सपेक्टिव अप्रोच, वो तो मैं नॉर्मल वर्ड में ही निकाल लूंगी सबसे पहले, राइट, या तो मैं वो कर सकती, तो मैं उसका फॉर्मूला लिख दूंगी, आई कैन शो द एग्जांपल, मैं वैल्यूज पुट इन करके एग्जांपल दे दूंगी. बट अब जब मैं नेक्स्ट पे आऊंगी, सो व्हाट विल यू डू इज यू विल सिंपली पुट इन द फॉर्मूला इन एक्सेल की लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट में इंटरेस्ट लगाया, मतलब लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट में मैंने कैपिटल पेमेंट रिड्यूस की, तब जाके आई कैन गेट द लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड. सो यू हैव टू राइट दिस इन वर्ड्स और यू हैव टू राइट दिस इन फॉर्मूला, otherwise you won't be given marks over that or you will be given partial marks. Clear? So let's try doing this question. So first I am showing you how to write in Word only because we are doing a Word class. So set out a loan schedule showing the capital and interest elements. So let's do. So first I will write, this is my question 8.8. So I am doing my second part, first part you can do yourself. So I will write, first I have to calculate the loan outstanding at the end of first year. At the end of first I have to calculate the installment amount, right? So you can give the heading installment. So what is the formula of installment? Since we are getting increasing annuities, so I can write this in words. You do not have to show any mathematics here. You can write simply in words. How can you write in words? Don't write my, the installment in the 5th installment. What will be the 5th installment? Will be equal to 4 increases and the original amount, right? Or you can write in mathematics, you can write it is equal to your 100 plus 4 into 20 increases, that is 180 pounds, right? Now talking about the 6th installment. The 6th installment, or you can not write in word, you can simply write 6th installment is equal to 180 plus 20 which is your 200 pounds. Similarly 7th installment क्या होगी? 200 plus 20 which is 220. So basically मैं हर एक कॉलम को ना स्टेप्स में दिखाती जाऊंगी. फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉलम कवर हो गया, एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनता है ना मेरा, एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम. सो मैं उस कॉलम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. अब करना है, इवन इफ यू आर शोइंग द लोन स्केड्यूल इन द टेबुलर फॉर्मेट, जिसमें आप सारा फॉर्मूला वगैरह नहीं दिखाओगे, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. ओके, दिस कैरीज मार्क्स. क्लियर गाइस? क्लियर हो गया? जल्दी बोलो. इज दिस क्लियर? इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम क्लियर हो गया? देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कॉलम. मैंने बोला कोई नई नोटेशन हम नहीं पढ़ेंगे आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है एक्चुअल में. प्रवीण, राशिका, मिथुन, सबको क्लियर हुआ ये? ठीक है, सिर्फ एक का यस आया है. क्विकली गाइस, मेरे पास 5 कॉलम से डिस्कस करने को. ठीक है, प्रवीण को भी समझ आया. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? ठीक है, सबको क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट कॉलम क्या निकालेंगे हम? लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर. सो आप हेडिंग दो लोन आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग को आप O/S भी लिख सकते हो. ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके बिकॉज O/S इज योर स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन, राइट? सो लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर. So first I have to calculate loan outstanding at the end of 5th year. So I will write it as end of 5th year. Or since I have given in the heading
fifth year, so I can simply write fifth year. Clear? So fifth year पे loan outstanding at the end कितना रहेगा? We will simply determine the equation of value, so it will be alt equal to 180, A 10, so A, now I have to go, I have to take 10 in the underscore, I put in bar, you know brackets क्यों लगाए मैंने यहाँ पर, brackets क्यों लगाए यहाँ पर मैंने, anyone can tell me why have I used brackets here? Quickly tell me why have I used brackets here? Yes, because brackets अगर मैं नहीं लगाती तो सिर्फ 0 पर बार आता, so that's why I have to use brackets here. ठीक है, 2 digits, 1 से ज्यादा digit होगी तो मुझे brackets use करना पड़ेगा. Clear? And then I click on enter, I mean space, and then I use my backward arrow key to come back to the notation, and I use my vertical bar. Use my forward arrow key to come out of this. Okay? Now मेरा IA10 है ना, तो मैं इसको ही copy paste कर लूंगी. So it is Control V. Simply मैं जाऊंगी इस पर, bracket लगाऊंगी, IA लिखूंगी और एक और bracket लगा दूंगी. Okay? Lot more easier. I can use the tables book values. So लिखूंगी using tables book values. So what will be 180 into your 7.27217 plus 20 into 39.3738. Okay, this is coming out to be 2177.38, and I can write pounds here. Clear guys? So this was my loan outstanding at the end of fifth year. Now I can't calculate the loan outstanding at the end of rest of the years without calculating the interest element and the capital element of the fifth payment, right? So let me calculate interest element. So interest element is basically my sixth installment. सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट का मेरा इंटरेस्ट एलिमेंट क्या होगा, लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर स्टार्ट इनटू माय 5% का इंटरेस्ट which is giving out to be 0.05 into 2177.38. This is giving out to be 108.87 pound. Now look, यहाँ पर मैंने दो चीज में लिखा है आंसर. एक तो मैंने लिखा है वर्ड फॉर्मेट में, ओके, एक मैंने लिखा है पूरा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में. So if you are from IFOA and if you are using Excel for calculations, तो आपकी calculations already हुई होंगी, so आपके पास ये answers नहीं होंगे ज़्यादा, ठीक है. तो आप simply यहाँ तक भी लिख दोगे तो you will be getting marks. Simply if you could write till here, अगर आप न्यूमेरिकल भी नहीं लिख रहे, वर्ड्स में फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. कंडीशन यू आर पेस्टिंग द टेबल फ्रॉम एक्सेल इनटू वर्ड. ओके, फॉर IFOA स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? IFOA students, is this clear? क्या बोला मैंने? Or do you want me to repeat myself? ठीक है. What about you, Shri? Is this clear? Rashika, Shivam, those from IFOA, is it clear? मैंने बोला अगर आप टेबल पेस्ट कर रहे होंगे तो आपके टेबल में ऑलरेडी वैल्यूज होंगी, सो यू डू नॉट नीड टू यूज दीज वैल्यूज अगेन एंड अगेन. यू कैन राइट योर फॉर्मूला इन दिस फॉर्मेट, वर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हो आप. ओके, क्लियर. अब II पे आए, II you won't be having your Excel
मैम तो आपको वैसे भी कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, सो इट्स बेटर कि जो जो कैलकुलेटर में आप करते जा रहे हो वो आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखते जाओ। बट यहाँ पर ये जरूर लिख देना लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 5th ईयर, इट मींस आपको ये पूरा लिखना है। क्लियर? एटलीस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैंने कितनी बार अपनी क्लासेस में बोला है, try practicing 100%, then 110%, then only you will be able to produce 90 to 100% in your exams. So II students, मिथुन क्लियर है? और कौन था II से? भव्या, मिथुन एंड भव्या क्लियर है? आप लोग ये पूरा लिख दोगे तो इट विल बी वर्किंग। फिर आप लोन स्केड्यूल दिखाओ ना दिखाओ, इट इज ओके। ठीक है, एंड बोल्ड आउट योर आंसर, स्पेशली IAI स्टूडेंट्स, क्योंकि आप टेबल फॉर्मेट अगर नहीं दिखा रहे हो, टेबल दिखा रहे हो तो बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टेबल इज योर फाइनल आंसर। बट अगर आप टेबल फॉर्मेट नहीं दिखा रहे हो, if you are writing in numerical terms, then please bold out each and every part of the loan schedule. ठीक है बच्चों, very good. Now if I talk about my 7th installment, so 7th installment का interest element क्या होगा? I just simply copy paste everything and I can change everything. 8th installment I do not need to calculate, so मैं सिर्फ 7th तक बात करूंगी, loan outstanding at the end of 6th year into 5%, and this I can either calculate and this I can not calculate as well. That's completely okay. Okay? क्योंकि उसके लिए पहले मेरे को loan outstanding at the end of वो निकालना पड़ेगा, 6th year निकालना पड़ेगा। Similarly coming to capital payments, ये capital element। So capital element क्या होगा? मेरी 6th installment का my installment amount less my interest element. Just write interest element and then write the values. Okay? Look, अगर आप लिख रहे हो सिर्फ इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो आपको न्यूमेरिकल टर्म दिखानी पड़ेगी, बिकॉज यू आर नॉट स्पेसिफाइंग ना कि कौन सी इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अगर आप लिख रहे हो इंटरेस्ट एलिमेंट तो आपको न्यूमेरिकल टर्म दिखानी पड़ेगी। बट इफ यू आर राइटिंग इंस्टॉलमेंट 6th इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इफ यू आर राइटिंग इंटरेस्ट एलिमेंट इन 6th इंस्टॉलमेंट, सो ठीक है, फिर आप वर्ड्स में लिखो, न्यूमेरिकल्स ना दो और टेबल दिखा रहे हो एंड में, सो देन इट्स ओके। क्लियर? मतलब आपके स्टेप्स रिपीट भी ना हो और आपके स्टेप्स कम भी ना हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट ये एक फॉर्मेट दिख रहा है ना। अब अगर एग्जामिनर को आपका फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एलिमेंट के मार्क्स देने हैं, सो व्हाट ही विल डू इज इंटरेस्ट एलिमेंट वाले सेक्शन पे जाएगा, इंटरेस्ट एलिमेंट की सारी कैलकुलेशंस देखेगा, फॉर्मूला दे रखा है देखेगा, एंड दे विल गिव यू मार्क्स। एंड टेबल देखेगा, टेबल पे सब कुछ सही है, दे विल गिव यू मार्क्स। वी वांट एग्जामिनर कि उसको ज्यादा एफर्ट्स ही ना डालने पड़े आपके आंसर देखने में। ठीक है? Similarly, 7th installment का capital amount भी I can write in the same way, so I can just copy paste installment amount minus interest element, so you can write the simply. फिर last element क्या बचा मेरा? Loan outstanding at the start of year, so it will be loan outstanding at the, so you can write this is equal to the loan outstanding at the end of previous year. अब जब आपने ये चीज लिख दी ना तो आपने एग्जामिनर को बता दिया, आपको पता है हाउ कैन यू कैलकुलेट लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है? सो इफ यू आर शोइंग द टेबल्स तो आपने इतना लिख दिया तो भी सफिशिएंट है, आपको हर एक ईयर का बताने की जरूरत नहीं है। ओके? अदरवाइज व्हाट यू कुड हैव डन इज 5th ईयर पर तो निकालना ही नहीं है, 6th ईयर निकालना है, 6th ईयर लिखते एंड यू कैन राइट लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 5th ईयर, एंड सिमिलरली 7th ईयर लिखते लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 6th ईयर। ठीक है? आपका ये कॉलम पूरा हो गया, आपका कैपिटल एलिमेंट कॉलम पूरा हो गया, आपका इंटरेस्ट एलिमेंट हो गया। अब सिंस आपने ये दोनों चीज निकाल ली होंगी तो आप इस पे आ सकते हो। ठीक है? हाउ डू यू कैलकुलेट? 6th ईयर पे 6th ईयर का क्या होगा? लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 5th ईयर
माइनस कैपिटल रीपेड इन कैपिटल एलिमेंट ऑफ 6th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने लिखा कैपिटल एलिमेंट ऑफ 6th इंस्टॉलमेंट, मैं क्या लिख सकती थी, कैपिटल रीपेड इन 5th ईयर एज वेल, मैं वो भी लिख सकती थी ना, बट क्या मैंने नीचे लिखा है कैपिटल रीपेड इन 5th इंस्टॉलमेंट या 5th ईयर, नहीं लिखा ना। सो मैं वर्ड्स में भी वही चीज लिखूंगी जो मैंने ऊपर कैलकुलेट करने में दिखाई है, अदरवाइज हाउ वुड एग्जामिनर नो कैपिटल रीपेड इन 5th ईयर और 6th ईयर, समझे। सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 7th ईयर का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ऐसे ही 7th ईयर निकाल सकते हो। क्लियर है। अब वर्ड्स में न्यूमेरिकल्स में दिखाओ दैट डिपेंड्स कि आप टेबल बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। आप न्यूमेरिकल्स में भी शो कर सकते हो, आप टेबल्स में। कितना क्लीन फॉर्मेट है लिखने का, मैस्ड अप नहीं है बिल्कुल भी, कि जितना क्लीन रहेगा ना उसमें दो फायदे, पहला एग्जामिनर इजीली नंबर देगा, दूसरा आप भी जब रिवाइज करोगे ना तो आपको भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज के लिए, सो यू कैन इजीली रिवाइज। ओके, क्लियर है गाइज। अब अगर आप वर्ड में टेबल बनाना चाहते हो डायरेक्टली, आप यू आर कंफर्टेबल विद कैलकुलेटर, सो टेबल लो, टेबल फॉर्मेट पे जाओ, यू यूज योर टेबल्स। ठीक है, अब ध्यान रखना व्हेन आई कम इन टेबल्स, तो अगर मैंने लिखा यहाँ पर समझ लो ईयर, यहाँ पर लिखा लोन आउटस्टैंडिंग एट दी स्टार्ट, यहाँ पर मैंने लिखा इंटरेस्ट एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर अगर तुम एंटर करोगे ना, पुट इन, सो एंटर से आप विद इन दी सेल जाते हो। ठीक है, बैक स्पेस से आप जो एंटर बैक स्पेस जो भी करोगे वो सेल के अंदर रहेगा। सो इसीलिए यहाँ पर भी मुझको क्या यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन एडिटर की तरह फॉरवर्ड एरो की और बैकवर्ड एरो की, डाउनवर्ड एरो की एंड अपवर्ड एरो की, ये यूज करनी पड़ेंगे, अदरवाइज माउस यूज करना पड़ेगा। Those who have opened up their word, please एक बार यूज टेबल ड्रॉ करके देख लो, टेबल में वैल्यू पुट इन करके देख लो, कोई एरर आ रहा है, आप टेबल के अंदर भी इक्वेशन एडिटर पुट इन कर सकते हो। ठीक है, आप टेबल के अंदर भी इक्वेशन एडिटर पुट इन कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको, टेल मी। कुछ पूछना है पूछो, एनीवन। Anyone wanna ask anything? ठीक है, मैं तुमको क्लियर है, रेस्ट ऑफ यू गाइज क्लियर है। फॉर्मेटिंग कैसे लिखा मैंने, सही आंसर्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस प्रेजेंट आंसर इन द सही वे, यू नो, करेक्ट वे। सो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, आप एक्सेल यूज करके पेस्ट कर रहे हो तो भी आपको सारे फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। ओके, अगर आप नॉर्मल विदाउट एक्सेल भी यूज कर रहे हो तो भी आपको शो करना पड़ेगा। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल एलिमेंट वी हैव टू शो द टेबल टू। यस, बेसिकली देखो मैंने बोला कि अगर आप टेबल प्रोड्यूस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आईआई के स्टूडेंट्स में जो सॉफ्टवेयर होता है, इफ इट इज कंपैटिबल विद टेबल प्रोड्यूसिंग, सो आप टेबल प्रोड्यूस करके आना, लोन शेड्यूल कैलकुलेट करने बोला है तो, ठीक है, करके आना प्रोड्यूस टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपने कैलकुलेट करी है ऊपर वैल्यूज, देखो मैंने बोला था ना कि अगर आप टेबल प्रोड्यूस कर रहे हो सो यू कैन जस्ट राइट द फॉर्मूलाज इन वर्ड्स, बट अगर आप टेबल प्रोड्यूस नहीं करें तो ऑब्वियसली आप ऊपर भी जाकर इनको न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखोगी ना आंसर। हाउ टू रिमूव एक्स्ट्रा कॉलम्स एंड रो, देखो यहाँ पर आप होवर करो अपना माउस अगर आप होवर करोगे, क्लिक नहीं करना कहीं पर, सिर्फ होवर करो तो देखो जब ये हमारा क्रॉस का साइन आ रहा है इट मींस आप इस टेबल को एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर, फिर आप इसके और इसके इंटरसेक्शन पे जाओ, देखो दिस मींस लाइन कैसी दिख रही है,
वर्टिकल दिख रही है ना, वर्टिकल लाइन का मतलब ये एक कॉलम इंसर्ट करेगा, तो प्रेस कर दो, कॉलम इंसर्ट हो गया। अब जब इस पे जाओगे, लास्ट हैंड साइड पे जाओ, बेसिकली गो टू, यहां से आप क्या कर सकते हो, अपनी रो की साइड विड्थ और वो चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया? अदरवाइज जब आप टेबल बनाओ, वैसे तो देखो इंसर्ट पे जाओगे, टेबल पे जाओगे, यू कैन चूज योर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक, यहीं से कर सकते हो, वरना यहाँ पर भी कर सकते हो, इंसर्ट टेबल, फिर आपसे नंबर ऑफ रोज पूछेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स पूछेगा। अदरवाइज यहाँ से आप रो एंड कॉलम ऐड कर सकते हो। ओके है सबको? किसी को कोई डाउट? टेल मी। वरना यहाँ पर देखो इंसर्ट दिख रहा है, लेफ्ट साइड क्लिक करो किसी भी इंटरसेक्शन पे, फिर आपको ये इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट दिखने पर इंसर्ट कॉलम्स टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू राइट, रोज अबव, रोज बिलो और इंसर्ट सेल। ठीक है राशिका, क्लियर है कि टेबल कब दिखाने कब नहीं दिखाने, टेबल दिखा रहे हो तो क्या क्या दिखाना है, टेबल नहीं दिखा रहे हो तो क्या दिखाना है? किसी और को कोई डाउट? सिमिलर टेबल आपको जब आप CT5 पोर्शन पे आओगे ना, यूलिप प्रॉफिट टेस्टिंग, तो भी आपको दिखानी पड़ेंगी, ठीक है? विल बी डूइंग अ क्लास फॉर यूलिप एज वेल, जब तक हम वहां पहुंचेंगे, बट आई वांट कि यहाँ पर तो क्लियर हो जाए लोन शेड्यूल। सो अगेन, अगर आप IFOA से हैं तो आप एक्सेल यूज कर सकते हैं, इट्स योर विश कि अगर आपको लंबा लोन शेड्यूल प्रोड्यूस करना है, वैसे तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन टू प्रोड्यूस द लोन शेड्यूल इज नॉट जनरली आस्क्ड इन योर पेपर A, ठीक है, बट स्टिल जैसे 2-3 वैल्यूज का लोन शेड्यूल प्रोड्यूस करना है, आपको एक्सेल यूज करना है, यू कैन यूज योर एक्सेल, यू कैन पेस्ट योर टेबल फ्रॉम एक्सेल। पेस्ट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल C कंट्रोल V डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन व्हाट यू कैन डू इज, देखो एक बार करके भी देख लो सब, कोई भी 2-4 वैल्यूज की टेबल बना के देख लो, कंट्रोल C करो, कंट्रोल V डालो, यहाँ पर परफेक्ट टेबल आएगी, परफेक्ट टेबल पेस्ट कर लो, कोई लेफ्ट साइड से स्पेशल पेस्टिंग नहीं करनी है, सीधे कंट्रोल C कंट्रोल V, ओके, वो पेस्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू शो ईच एंड एवरी फॉर्मूला यू आर डूइंग। इस वाले क्वेश्चन भी, फ्यूचर क्वेश्चंस में भी या फ्यूचर चैप्टर्स में भी, दोस्त फ्रॉम आई डू नॉट थिंक कि आप डिसएडवांटेज पे हैं, बिकॉज इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जिसमें आपको एक्सेल से एक एडेड एडवांटेज मिले, ओके, स्पेशली इन CM1 नहीं पूछा जाता इतना क्वेश्चन। सो आप क्या करोगे, आप ऐसे इस फॉर्मेट में कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, यू हैव योर कैलकुलेटर, सो वर्ड में भी लिख देना और न्यूमेरिकल्स में भी लिख देना, ठीक है, उससे क्या है कि आपके फॉर्मूले के मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपको आपके न्यूमेरिकल्स के मार्क्स भी मिल जाएंगे। इफ योर सिस्टम इज कंपैटिबल विद क्रिएटिंग टेबल बनाया ना, इट इज एन एडेड एडवांटेज, एग्जामिनर को कोई स्कोप ही नहीं मिलेगा मार्क्स डिडक्ट करने का, ठीक है। और अगर टेबल से कंपैटिबल नहीं है, सो मेक श्योर यू आर बोल्डिंग आउट ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल आंसर। क्लियर गाइज? अगर आपने टेबल बनाई है तो आप भी न्यूमेरिकल एलिमेंट मिस कर सकते हो, बट पहले वाले का मत करना, जैसे कि ये वाला इंस्टॉलमेंट अमाउंट का मिस मत करना, क्योंकि इसमें तो न्यूमेरिकल ऑब्वियसली चाहिएगा, और लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 5th ईयर मत करना, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी आप टेबल से मतलब कि सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेट नहीं करोगे। दोस थिंग्स की जो टेबल से वैल्यूज उठाओगे ना, सो वो आप न्यूमेरिकल वर्ड्स अल्फाबेटिकल्स में लिख सकते हो। सो इस क्लास का मोटो मेरा यही था कि प्रेजेंट कैसे करना है लोन शेड्यूल का आंसर। बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, सर ये लिखूं आंसर में या नहीं लिखूं, मैम ये लिखूं नहीं लिखूं, एक्सेल नहीं है तो क्या करूं, टेबल नहीं है तो क्या करूं। अब क्लियर हो गया? कोई डाउट है कि टेबुलर फॉर्मेट के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट आई कैन टेक इन। किसी को कोई डाउट नहीं है तो जस्ट राइट क्लियर एंड वी कैन रैप अप द क्लास देन। कोई भी डाउट है, अब तक की क्लास में कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। ठीक है, मिथुन को क्लियर है, शिवम को, राशिका, श्री एंड भव्य, शिवम
शिवम को क्लियर है, सॉरी, प्रवीण, ठीक है, श्री को क्लियर है, loan schedule question, word format or table format, anyone is enough ma'am. Look Praveen, मैंने अभी भी बोला कि if you are able to produce table, so table produce कर ही आना, even though you have to show this word format, तो दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको फॉर्मूले दिखाने ही पड़ेंगे, पेपर ए में दिखाने पड़ेंगे, ओके, पेपर बी इज समथिंग एल्स. So पेपर ए में वर्ड फॉर्मेट तो दिखाना पड़ेगा, बट इफ यू हैव टाइम, इफ यू आर हैविंग द फंक्शनैलिटी ऑफ टेबल, so I would recommend please एक table भी produce कर आना, okay? Don't give the examiner scope of deducting the marks. Otherwise your first priority should be कि आप ये सारा numerical जरूर करके आ रहे हो, table नहीं भी दिखा रहे होंगे अगर, so please try कि ऐसा है कि अगर आपका पेपर छूट रहा है, so table और उसमें चूज करना होगा तो वर्ड सबसे पहले दिखाना है, बिकॉज फॉर्मूला दिखाना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स तो डिडक्ट होने ही होने हैं, फॉर्मूला नहीं दिखाया तो. IFO स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉर्मूला दिखाना जरूरी है. आपकी IFO हैंडबुक जब बन के आती है ना, तो उसमें जरूर लिखा होता है स्पेसिफिकली कि मार्क्स आपको पूरे फॉर्मूले दिखाने पर ही मिलेंगे. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट द मार्क्स ओनली ऑन द फाइनल आंसर, मार्क्स नहीं मिलते पूरे, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. So any doubt or we can wrap up the class guys? If we are using Excel for table, then the given format of presenting answer will be the same, right? We have to just show what formula we use. Yes, format remains same. You have to show, look here, everything I have just written the formula. I don't use the numerical value, because why? Because I was calculating numerical values in the Excel, so they can take out my values from the tables only. So I just paste my table from the Excel and I show all these formulas. Then it's okay. They'll be giving marks for the formulas here, they'll be giving marks for the values here. फॉर एग्जाम्पल अगर हर एक वैल्यू की, हर एक सेल का मार्क्स एक है, तो आधा नंबर फॉर्मूला का होगा और आधा नंबर आपका वैल्यू का होगा, तो आधा यहाँ मिल रहा होगा और आधा वहां मिल रहा होगा. ठीक है, अब सोच लो 16 वैल्यूज हैं, 16 में से 8 नंबर वुड बी फॉर योर फॉर्मूलाज, 8 नंबर वुड बी फॉर योर वैल्यूज. अगर आप फॉर्मूला निकाल रहे तो यू आर लूजिंग ऑन योर 8 नंबर्स ना, दैट्स व्हाई फॉर्मूला दिखाना जरूरी है. ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइज? Waiting for 30 more seconds and then we can wrap up the class if we are getting no doubts. Okay then, let's wrap up the class. Let's meet in next class and see कि क्या next notation सीखेंगे हम. Okay, any particular question if you need me to solve, please message our team and they can inform me and then we can discuss that question in the last class. Please try practicing as much as possible. Okay.